respected faculty members and dear students. Here we are presenting an international seminar on professional development and entrepreneurship. We have respected Mr. Faisal Nadeem here. He is a fashion graduate working with JISMA Business School. And we have respected Professor Ms. Fabiola Pinto Mendoza to talk in detail about aspects such as career development and student development. The discussion will be followed by a question and answer session. I would like to ask about your interest. Okay? Thank you so much. Fabi, all the students are directly listening to you. You can proceed now. Okay, now that's up to you. Okay, you will tell me if I'm not low, my voice is not that loud, okay? So, hello everyone, I hope you are okay, and I'm currently classmate with Faisal. We are studying the same master degree in strategic business management. I have a background in international business, so I'm more focused in international field. What we wanted to talk today, it's about professional development, especially the importance for me. I want to take from my experience, in the past, I had a lot of part of the strategic program. So I am the student. Okay, I hope you can hear me well. So, as I was telling you, I am the student representative now of this master program. And for me, what I want to share with you, it's about, I don't know if you had opportunity to hear about the leadership competency pyramid. So that tells you something that you can work on, when you are already are going into the business work, when you have to be good with yourself first to transmit or give to a company all you want to achieve, all the goals the company want to achieve. You can be a good tool, but you have to work first on yourself. From my experience, as I was the leader of different things in the past, volunteering things in my school, in some sport clubs. Now that I am the club representative also from this master program, for me it's really challenging, because it's not just about being the leader that will tell people what to do or what they have to achieve and then they leave them alone, it's always about first working on yourself, to transmit this to all people are following you. Especially it's good to work on your skills and attributes as a person, what you think that it is missing in your life. I don't know if in my case I'm not really patient. So how can I lead people if I am not patient with them, right? It shouldn't be a good leader if I just get mad at people or I don't act in the correct manner. It's just to be not patient with them, right? So what you have to do is to identify the things you have weakness, as I was telling you, the skills you think that you should develop, okay, I'm not a good listener, I'm not patient with people, or maybe I'm not flexible. There are some skills we have to develop as a person when we want to achieve own goals, and also when you join a company, that it's the most important thing. It's to be aligned with the goals the company wants. You have to know what
which of your skills are going to contribute to the company, right? So if you think that you are not good at some points, and I am not talking about technical stuff like learning programs or knowing all the company they want, but about the personality you have with your colleagues and with all of the team members of the company. You have to work on those things, right? So you will become a better person, not just for you and in your life, but also for the company, and you will be key for them, and they will value you like a person, and they will like then hire you, or they will appreciate your work, and they will like at some point value the work you do, so you will be scaling up in the job positions you want, right? So in my case, as I was telling you, this helped me a lot in my career, and now that I just got a part-time job, like while I'm studying this master, I also have this part-time job. So for me, it's really challenging to manage people, to see how is the different culture we have. How open we have to be. I will suggest to you, like curious and the things you think that are important in a company, and enrich your knowledge. You know, like knowledge will always be power. So we have to always keep it like updating of the topics our field requires, right? Because I know that you came from different backgrounds. It's not about just the business world, but yeah, you will always have to train your mind about what the company is expecting from you, right? So as I was telling you, it's better to work first on our value, like the things we want to give to the company, and how are we going to achieve this? When we work in ourselves, when we have this in our mind, like when we are completely good with ourselves, we will have the ability, like to show to the world and the company, of course, and our colleagues, that we are feeling that way, right? We are going to be capable enough to work with people in general. Yeah, personal development, how I was working this past month. Now that I'm in Germany, it's like really new. I am from Bolivia, so I came from a different background, so a different culture than the German. So for me, it was at the beginning really hard to adapt to this culture. But as I'm telling you, you have to be really open, like your mindset, you should be really open to get to know others and also learn from others. And you can also teach them some of the things you had, like your knowledge and all the culture and your background, right? So for me, it's about the value you give to a company, but when you work with yourself first and how you work on the things you think you are your weakness, that you are not that good. Yeah, basically it's about that for me, how I was working these past months on myself in my personal development, and I also had a coach about it. So if you really want to get to know about more of this topic, you can just search in the internet. There are a lot of talks, a lot of people that are willing to help you and give you some things. And if you see that pyramid that I was talking about, like the leadership competency pyramid, you can see all the aspects you can work on or which are missing for you. That is for me a good tool to start. I don't have the growth mindset, or I don't have the good communication or portfolio intelligence, that are some attributes that this pyramid shows you. Maybe Faisal can show you later, or you can just search it in the internet. But if you want to start, that's a good beginning, to just start looking at that and recognizing what you have and what is missing.
yeah. So yeah, I don't know if you have any questions, but I just wanted to share you, like, from my experience, what school work, personal development, and the tools that help me to achieve my goals and be a better person, right? So then I can show also to my people, the people I meet, what is the way I want to work, and they can feel like they are valued, you know, like that I value their work. Thank you so much, Ms. Fabiola Minto Mendoza. Let's continue the seminar with Mr. Nadeem Faisal. You're welcome. Thank you, guys. Please everyone settle down, please. Start our session. ये बैक सीट वाले प्लीज जरा बैठ जाएं आप. I know it's very difficult आपकी क्लास से पकड़ के लाया गया है. ये कुछ साल पहले हमारे साथ भी ऐसा होता था, और जिन्होंने किया वो सामने बैठी हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. सेशन स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके लिए, इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद. सो माय नेम इज फैसल नदीम भट्ट. आई एम बेसिकली अ फैशन कंसल्टेंट. I done my bachelor's in fashion designing from University Karachi in 2014, and after that I go to Berlin and then my MPhil in strategic business management, and right now in 2 to 3 months I end my PhD degree, and I'm working for H&M and a strategic business management department as a head of Berlin. So यहाँ मैं आया था छुट्टियों में बेसिकली, तो मैंने सोचा 2 महीने या मैंने रहना है तो उसे ज़ाया करने से बेहतर है कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तानी के वो अपना एक्सपीरियंस अपने जूनियर्स के साथ शेयर करे. और वैसे भी आप में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है. मैम सानिया आपकी टीचर हैं और ये मेरी टीचर भी रह चुकी हैं. सिर्फ फ़र्क इतना उसको कि बहुत छोटी थी, और जब ये खड़ी होती थी तो पता नहीं चलता था ये टीचर या स्टूडेंट है. और मेरे साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं अकेला लड़का था, हमारे डिपार्टमेंट सारी लड़कियाँ थी. तो अब ये खड़ी होती थी लड़कियों के बीच में तो पता ही नहीं चलता था कि टीचर खड़ा है स्टूडेंट खड़ा. तो हम जाते हुए जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में चिन्ह मारते हैं तो हम चिन्ह मारते चले जाते थे, बाद में पता चलता था ये खड़ी नहीं है. तो उसके बाद जो कमर में बुला के हमारे साथ करती थी वो मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाह रहा. बेसिकली हम यहाँ हैं क्यों, पहले मैं इस टॉपिक पे बात कर लूँ, फिर हम प्रॉपर्ली अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. देखें इंशाल्लाह ताला आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनकरीब प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है और आने वाले कुछ सालों में मार्केट में जाएंगे. एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है, और ये प्रॉब्लम आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स में भी मिलेगा,
हमारे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनके एकेडमिक्स ग्रेड बहुत हाई होते हैं, बट मार्केट में उन्हें जॉब नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप किसी बच्चे से पूछोगे ना, डेफिनेटली वो इतनी मेहनत करता है, उसका A+ ग्रेड है, अच्छे मार्क्स हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और फिर बाद में आके आप किसी से पूछो, जॉब नहीं मिल रही। मार्केट में आपको एक बात बताऊँ, जितनी दुनिया है उससे कई गुना ज़्यादा जॉब है मार्केट में इस वक्त, लेकिन जॉब मिलती क्यों नहीं? वो जो इशू है, वो कौन सा ऐसा एक्स फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, वो कौन सी ऐसे सिंपल पॉइंट्स हैं जिन पे आप काम करके अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि आप मार्केट में बिग एन एंटरप्रेन्योर। और अगर आप वैसे ऑन जॉब सर्कल अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्यूचर में आपको हेल्प हो। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैं कोई ट्रेनर नहीं, आई एम जस्ट लाइक यू, बट I have more experience than you, so I want to share my experience with you. What are simple things you've done and get success in the market? So there is a question on the screen. Can anybody tell me what is the difference between a businessman and entrepreneur? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस पर? देखिए, आगे चल के आपके पास दो ऑप्शन हैं। यू स्टार्ट योर करियर एज एन एंटरप्रेन्योर और आपको कहीं जॉब करनी है, तो दोनों में श्योर Businessman starts business with a new with already existing idea, and entrepreneur starts business with like a new idea or a concept. Do you think a new idea concept gets success in the market easily? Not easily, but like you can work on that. More chances than a businessman. It's clear. Okay. Anyone else? Sure. अगर न्यू आइडिया होएगा तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन से अच्छा है, बिजनेस से अच्छा होगा। और कोई? Basically I'm a Desi person. You can talk in Punjabi as well. I have no issues with that. Allah will talk in Punjabi. Okay. The only difference between these two persons is mindset. Every entrepreneur become a businessman, but every businessman not become an entrepreneur. अब बिजनेसमैन होता क्या है? एक दुकान वाला भी बिजनेसमैन है, एक रेडी लगाने वाला भी बिजनेसमैन है। हाँ, उसके बिजनेस का वॉल्यूम डिफरेंट है। आप उससे जाके बात करो, आप उससे पूछो, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आफ्टर 5 years when you go and talk to them, वो आपको सेम चीज़ें बताएगा। हाँ, बहुत गुड बिजनेस करेगा तो थोड़ी सी सेल इंप्रूव कर देगा। आज वो 10,000 कमाता है तो 5 साल के बाद 50,000 कमाना शुरू हो जाएगा। बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करता। उसके पास न्यू कॉन्सेप्ट होता है, उसके पास न्यू आइडिया होता है। आप 5 साल बाद उससे जाके मिलोगे तो 5 साल बाद उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। मे बी वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका हो, मे बी वो सेम आइडिया को किसी और फील्ड में इम्प्लीमेंट कर चुका हो। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। वो बिजनेसमैन बोलता है मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, मुझे अब कोई जरूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाता। बल्कि एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है, वो ग्रोथ को खुद ढूंढता है। मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अपने लिए। ये जो आपका माइंडसेट है प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इंटर नहीं होंगे तो सक्सेस आगे चल के बहुत मुश्किल है आपके लिए। हम फर्दर इस पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिंपल पॉइंट्स हैं जिसकी इम्प्रूवमेंट के बाद हम जब अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। बेसिकली मार्केट में करते क्या हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना CV लेके किसी के पास जाते हैं जॉब के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं? बेसिकली योर CV इज योर प्रोडक्ट। आप उसे अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, मुझे ये आता है, मैंने इतनी GP है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं अपनी सर्विसेज आपको देना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए। यही करते हैं ना। अब मेरा सवाल है, कोई आपको क्यों खरीदेगा, कोई आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? उसके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसे अट्रैक्ट करे। अब एक बंदा है, वो मेरे पास आके मुझसे कहे मैं पेन बेचता हूँ, मुझसे पेन खरीद लें। तो मैं अरसे से एक ब्रांडेड कंपनी का पेन यूज़ करता हूँ, तो मैं उसका पेन क्यों खरीदूँगा? मैं नहीं लूँगा। हाँ, अंटिल वो मुझे कन्विंस करे नहीं मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके पेन में नहीं। वो मुझसे कहेगा ये बॉल पेन है 10 रुपये का है, मैं भाई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो भी 10 रुपये का है।
ओके, मैं क्यों लूँ? तो उनसे कहा मेरे पेन में एक ऐसा फीचर है जो आपके पेन में नहीं है, इसकी इंक वाटर प्रूफ है, दैट इज फैक्टर दैट डोंट हैव इन माय प्रोडक्ट, देन आई थिंक अबाउट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आपके अंदर जो आप अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रिंट करके मार्केट में जाके सक्सेस हासिल कर सकते हैं? हम डिस्कस करते हैं इसको। लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर की, या आप अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहें, वो है लीडरशिप स्किल। हमारे यहाँ मुझे बड़ी हैरत होती है देख के कि अखबार में ऐड छपता है लीडरशिप कोर्स ड्यूरेशन 2 months एंड यू बिकम अ लीडर। इतनी आसानी से लीडर बनता तो फिर तो कोई दुनिया लीडर बन जाती। लीडरशिप बेसिकली द माइंडसेट। लीडर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसको यूँ समझ लें, आपको सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। हमारे बहुत से रिलेशनशिप्स हैं, माँ बाप, बहन भाई, वाइफ, हस्बैंड। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, आप उससे कहोगे मुझे बहुत प्यार करता हूँ, आई नो, टेल मी द फिगर, 10%, 20%, 50%, 20%, 60%, इसका कोई आंसर नहीं। Leadership is like that. There is no answer how you become a good leader. It's practice. हमारे बहुत से नौजवान यहाँ बैठे हुए ये जिम जाते हैं, सो बड़ा एक्सरसाइज का फर्स्ट डे जिम जाओ, वहाँ से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, वापस आओ, शीशे के सामने आके अपनी शर्ट रिमूव करो, क्या फील होगा आपको? नथिंग। दूसरे दिन जाओ, वही एक्सरसाइज करो, फिर वापस आओगे, फिर क्या फील होगा? नथिंग। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करते हो, आपको बॉडी पेन होता है, आप टायर्ड होते हो, एक वक्त ऐसा आएगा बोलो कुछ फील तो हो नहीं रहा, रहने दो, हम जाते ही। असल प्रॉब्लम माइंडसेट में कंसिस्टेंट नहीं है। लीडरशिप इज द नेम ऑफ कंसिस्टेंट। जब तक आप कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करोगे किसी चीज पर, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो लीडरशिप का जो बेसिक रूल है, टू कंसिस्ट ऑन अ थिंग यू वांट टू डू। हमारे यहाँ क्या है, हम भी स्टूडेंट हैं, हमारे साथ भी ऐसा था। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। हमारे जब पेपर्स होते हैं, जब टाइम टेबल आता है, तो हम उसको जब देखते हैं तो हम कहते हैं अभी बहुत दिन है, कर लेंगे प्रिपरेशन। करते 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 85% बच्चे क्या करते हैं, उनको पेपर ही डेवलप करना जब याद आता है उस रात को जिस दिन अगले दिन पेपर होता है, पेपर के लिए किताबें खोल के बैठते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, फिर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं कि मुझे ऐसा लिखा जाएगा, और यही होता है। बट इफ यू हैव अ प्लान, सिंपल, जो टीचर ने पढ़ाया आप घर जाएं, उस पर 1 घंटा लगाएं, 1.5 घंटा लगाएं, दैट्स इनफ। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जब तक आप पास आउट नहीं होंगे, आपको उस चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं। फिक्स ऑन योर माइंड। सो यू शुड हैव बी कंसिस्टेंट इन एनी गोल। जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं तो स्लोली 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 आपके अंदर स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ आप एक ही दिन में नहीं सीख पाते। तो लीडरशिप स्किल डेवलप करने का जो बेसिक रूल है, ये इसलिए भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम सीरियस जॉब करना शुरू करते हैं, कुछ देर बाद हम फेडअप होना शुरू हो जाते हैं, जब आपको जॉब की कॉल नहीं आती। अभी मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे पहली जॉब 1 साल बाद मिली थी। 1 साल मैंने स्ट्रगल किया जॉब हासिल करने के लिए, बट आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट रहोगे, एक चीज को फोकस करके चलोगे, उस पर मेहनत करोगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद लीडरशिप स्किल्स पैदा होगी। हाउ टू मैनेज द टफ सिचुएशन, बेसिकली इट्स ओनली लीडरशिप। देखो नॉर्मल तो सब अच्छा है, जब अच्छा नहीं है तब कंसिस्टेंट कैसे रहना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। ये इस चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है फ्यूचर में जाके, तो किस तरीके से आपने अपने आप को फोकस करना है। एक्सपर्टीज, सीवी में ये चीज़ बहुत काउंट करती है आपने। विच काइंड ऑफ एक्सपर्टीज डू यू हैव इन योर सीवी और इन योर सेल्फ। मिसाल के तौर पे आप अपने कोर्स में बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, पसंद आपको एक ही सब्जेक्ट होगा और उसकी बहुत सी वजूहत है। बाद वक्त आपका टीचर बहुत अच्छा होता है, आपको गाइड बहुत अच्छे से करता है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। बाद वक्त बॉर्न स्किल्स होती हैं आपकी,
जैसे मैंने फैशन किया, फैशन की बच्चियाँ बैठी होंगी तो मुझे पैटर्न बहुत पसंद है, मुझसे आप रजिस्ट्रेशन बनवाओ, मुझसे नहीं बनती। आई हेट रजिस्ट्रेशन। हाँ, पैटर्न का काम मुझसे आप 2 दिन करवा लो, बिठा के मैं करूँगा, बिकॉज मुझे मज़ा आता है उसे करने में, मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो जो अपनी एक्सपर्टीज़ है उस पर मेहनत करें। या मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ आपको। जब आप मार्केट में इंटर करते हैं, इसको बेसिक ग्रास रूट से आप अपनी क्लास से ले लें। एक बच्चा है क्लास में, वो फर्स्ट आता है, अब दूसरा बच्चा है वो सेकंड आता है। अब जो बच्चा फर्स्ट आता है उसके केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत हाई हैं, और जो बच्चा सेकंड आता है उसके फिजिक्स में मार्क्स बहुत हाई हैं। अब वो क्या करता है, उसको कम्पीट करना है। वो उसको पता है मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, नेशनल, वो उसको छोड़ के केमिस्ट्री में मेहनत करना शुरू कर देता है, ताकि मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी तो मेरे केमिस्ट्री में से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो मैं सेकंड से फर्स्ट हो जाऊंगा। बट वो ये चीज़ नहीं सोचता कि केमिस्ट्री पर फोकस करते हुए उसका फोकस कहाँ से आउट हो रहा है, फिजिक्स से। अब आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को छोड़ के किसी की स्ट्रेंथ को कंपीट करने जा रहे हैं, इससे 2 लॉसेज होंगे आपको। एक, आप उसकी स्ट्रेंथ को बैलेंस नहीं कर पाओगे, वो नेचुरल है, हाँ इंप्रूव कर सकते हो पर उस तक नहीं जाओगे क्योंकि वो नेचुरल बॉर्न स्किल है उसकी। लेकिन उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है कि आप अपनी स्ट्रेंथ भी लूज कर रहे हो। एक्सपर्टीज मीन्स फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वर्क हार्ड एंड इंप्रूव दैट। यू गॉट दिस पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी स्किल्स देखो, हर इंसान के अंदर बॉर्न स्किल्स हैं। किसी को याद बहुत जल्दी हो जाता है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कोई ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है। हर इंसान की अपनी स्किल्स हैं, तो अपनी स्किल्स पे फोकस करें, आप उसे कंसंट्रेट करें, तो आगे चल के आपकी एक्सपर्टीज जब डेवलप होंगी तो आपके लिए बेहतर डेवलपमेंट के चांसेस हैं इन फ्यूचर। इनोवेशन, जैसे आपने कहा कि इनोवेटिव होता है, व्हाई इनोवेशन नीड एंड व्हाट इनोवेशन इज, दैट इज 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा आप सबसे सवाल है, इनोवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई वी डू इनोवेशन? पुरानी चीज को रह के नई चीज चाहिए थी मार्केट। बेसिकली टू फुलफिल द नीड्स और डिमांड्स, दैट इज व्हाई वी नीड इनोवेशन। गुड। व्हाई वी डू इनोवेशन एंड व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन है क्या? कोई मुझे बताना चाहेगा इनोवेशन किसे कहते हैं? इनोवेशन बेसिकली चीज क्या है? देखो, यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है इनोवेशन, एक है मॉडिफिकेशन। दोनों में बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे पहले जमाने में हम खत लिखा करते थे, अब हम ईमेल करते हैं। ये इनोवेशन है या मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इनोवेशन और मॉडिफिकेशन में फर्क क्या होता है। पहले हम ट्रेवल करते थे बाय बस, अब हम प्लेन में ट्रेवल करते हैं। ये इनोवेशन है या मॉडिफिकेशन है? ये इनोवेशन है। क्यों? समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। और एक बात याद रखिएगा, मार्केट में कभी भी आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता, हमेशा आपका आइडिया सेल होता है। इफ यू हैव अ गुड आइडिया, इतने इन्वेस्टर मार्केट में बैठे हैं कि आपकी सोच है, आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए। और यूनिक आइडिया आता कब है? व्हेन यू रीड। आपकी इनोवेशन स्किल्स इंप्रूव होती है रीडिंग से। जब आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आप चीजों को रीड करोगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर जाके बुक्स पढ़ते हैं? आप, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। पता है हमारी जो लाइफ है ना, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है इस वक्त? जो मैं समझता हूँ वो करेक्ट, मोबाइल फोन। हम करते क्या है? नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करो, मसला नहीं। लेकिन मसला है हम चैट भी तीनों सॉफ्टवेयर में किसी सेम बंदे से कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है सारा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, आप यकीन करें, मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया, तो यहाँ यूथ बैठा है, तो मैं यूथ वाली एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मैंने एक सेमिनार में किसी से पूछा, मैंने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठो, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कोई भी बंदा यहाँ बैठ के ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% खुश है। हर किसी के साथ कोई ना कोई मसला है। तो यूथ बैठी हुई थी, मैंने यूथ से डिस्कस करना शुरू किया, मसला क्या है। आप यकीन करें, मुझे इतनी हंसी आई उसके बाद, और मैंने कहा कि अल्लाह ताला आसानियाँ करें इनके लिए।
70% यूथ है, वो तुमसे ऐसा पूछेंगे जाके जवाब दे देना। तो मेरे जहन से निकल गया 2 दिन बाद जब मैं या तो वो दोनों बैठी हुई थी, वो जिसका इंटरव्यू था वो रो रही थी बैठ के। तो मुझे लगा कि शायद जो है ना इसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, तो किसी ने कुछ कहा है। तो जो उसके साथ वाली थी हंसना शुरू हो गई मुझे देख के, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तुम किसी बदतमीज हो, चाहे रो रही तुम हंस रही हो, ये सर आपको पता ही क्यों रो रही है? मैंने कहा डेफिनेटली इसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू खराब होगा। कहते नहीं सर आपसे पूछे रो क्यों रही है? अच्छा, उस वक्त मैं टीवी नॉर्मली बहुत कम देखता हूँ। उस वक्त ये ड्रामा चला था मेरे पास तुम हो, मैं तो उसको देखा भी नहीं कभी। तो मुझे कह रही सर ये पता क्यों रो रही है? मैंने कहा सर इसलिए रो रही दानिश मर गया। अब मैं परेशान, अच्छा मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं भी दानिश जिसका कोई रिश्तेदार था। तो मतलब ये हाल है कि आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ऐसा मिक्स किया हुआ है। लेकिन जब भी प्रोफेशनली किसी कंपनी में आप जॉब करोगे या बीइंग एंटरप्रेन्योर अपना कैरियर स्टार्ट करोगे, यू शुड डिफरेंशिएट दिस टू थिंग्स। आप ऑफिस में आ गए तो आपको ऑफिस में ही रहना है, यानी आपका मूड घर से खराब है तो ऑफिस में आके आपने किसी से मुंह बात नहीं करनी। दैट इज नॉट द वे टू डू योर लाइफ विद योर थिंग्स। हैंडल इट प्रॉपर्ली। कल्चरल इंटेलिजेंस मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना किसी पर्सन के लिए, वो यही है। ठीक है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन और हर मुल्क का एक कल्चर होता है। आप यहाँ आने से पहले किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन यहाँ से डिफरेंट होंगे, यहाँ के रूल और रेगुलेशन डिफरेंट हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट कल्चर है। आपको पता है मार्केट में फेल क्यों होते हैं? हम उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में आप जॉब करने, आपका बॉस बहुत अच्छा था, आप बड़े कंफर्टेबल थे। आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे, आपका बॉस खड़ूस होगा, आप कंपनी छोड़ दोगे? नहीं, यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू अडॉप्ट द कल्चर इंटेलिजेंटली। कुछ रूल्स होते हैं जो कुछ जगह पे सूटेबल होते हैं, लेकिन कुछ रूल कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन हमारा माइंड सेट है कि हमने वही करना है जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज आपको पीछे धकेलती है। कहते हैं बड़ा अच्छा कोड है, इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर फर्स्ट लुक लाइक अ मैनेजर। जब तक कपड़े नहीं पहनोगे वैसे जिसमें मैनेजर दिखता है वो आपको कैसे दिखा। मैंने इतने इंटरव्यूज किए हैं बच्चों के, मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप यकीन करें आपने पैंट शर्ट में नीचे सैंडल पहनी हुई, और मुझे लगता है जितना घर में तेल था सारा सर में डाला हुआ है। प्रोफेशनल, व्हेन यू गो यू लुक लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। कभी भी इंटरव्यू लिख के देने के लिए जाएं, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ें। आपसे वो पूछेगा आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं। सर जो जॉब आई थी मैं फारिग बैठा, कोई काम था, मैं सीवी ड्रॉप कर दिया। बोलेगा बहुत ही बेला आदमी है, जाने दो फिर इसको। नहीं, शुड बी लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट क्या बनाती है, उसके कितने एम्प्लॉयज हैं, कब से काम कर रही है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है मार्केट में। जब इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होगी, आप उसका कल्चर क्या है, उसके कल्चर की में वो क्या करते हैं, क्या इवेंट्स करते हैं, तो जब आप बैठोगे इंटरव्यू पैनल में यू शुड बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो आपके पास बहुत नॉलेज होगी अबाउट दैट कंपनी। जब आप बात करोगे तो आपकी बात करने के स्टाइल से उसको लगेगा नहीं इसको चीज़ की समझ है, इसको पता है, तो ऑटोमेटिकली आपके जॉब गेटिंग के चांसेस इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल्स नहीं, हर बच्चे की अपनी क्वालिटी, उसके पास स्किल्स है। हमारे अंदर बात करने का भी फेयर है। हम इवन, ये तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते प्रॉपर्ली। नई क्लास होती है ना, पहला दिन होता है, टीचर आगे बोलता है सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो सबसे पहले ना राइट टू लेफ्ट देखते हैं पहले कौन शुरू करेगा। तो हम भाग रहे होते हैं कि ऑलवेज इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसका सबसे आसान तरीका है शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलना शुरू करो। जिनको बोलने का फेयर है ना, जिससे बोला नहीं जाता, ये मैं उनसे हकीकत की कह रहा हूँ। वो कहते हैं आईना हमेशा सच बताता है, और ऐसा हकीकत है। आप बोल क्यों नहीं पाते, इसका एक रीजन है। आपके दिमाग में फेयर चल रहा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं। दूसरा फेयर क्या होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो जो सोचता है सोचने दो, हमें उससे क्या लेना देना। जस्ट कॉन्फिडेंट फ्रॉम योर माइंड सेट कि आई हैव टू टॉक। आप यकीन करें,
आप दिन में आधा घंटा शीशे के सामने बोलें और 1 महीने बाद आप यहाँ खड़े होकर मुझसे अच्छा बोल रहे हो। हम अपनी लाइफ को कैसे गुजार रहे हैं, कभी सोचिएगा। मैं बच्चों से पूछता हूँ, आपने एडमिशन लिया, मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना चाहते हो, ये कोर्स क्यों लिया? तो आपसे 70-80% जवाब आता है, वो पापा को पसंद था तो पापा ने कहा ले लो। तो मैंने कहा बेटा फिर पापा को बोलते ना, पढ़े आप क्यों पढ़ लो? और ये हकीकत है। असल में प्रॉब्लम ये है, हम बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गई, हम ना इमेजिनरी जिंदगी गुजारते हैं, हमारा हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कौन है? ये बिल्ड किया गया, हमारे कल्चर का हिस्सा है। रियलिस्टिक लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। थ्योरेटिकली आप पढ़ते हो, लेकिन जब आप जाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इससे बहुत अलग है। हम उस लाइफ को देखते नहीं। बचपन से, चाइल्डहुड से हमें क्या सिखाया गया है? हम सिंड्रेला के बड़े फैन है ना, जब बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो बचपन से हम सिंड्रेला हमें दिखाई जाती है। अब उसमें सिंड्रेला में क्या दिखाया जाता है? सिंड्रेला में दिखाया जाता है प्रिंसेस है, टाइम गुजरेगा, प्रिंस आएगा और वो प्रिंस के साथ चली जाएगी। हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में फुप्पी का बेटा ही आता है इनमें, एंड दैट इज ट्रू। और वो फुप्पी का बेटा भी क्यों आता है, उसके भी एक रीजन है, क्योंकि वो खानदान का वाइस इंजीनियर होता है और सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। ये फैक्ट है। तो फिर आपको भी इंजीनियर क्यों बनना है? वो पापा कहते हैं वो उसका बेटा देखो कितने पैसे कमाता है, वो इंजीनियर है, तुम्हें भी इंजीनियर बनना। अब बच्चे के अंदर इंजीनियर वाला काम ही कोई नहीं है, पर बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और हमेशा वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। यानी जब आप कैरियर सेलेक्ट करते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप इस इंस्टीट्यूट में आए होंगे, इधर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपने अपनी पसंद का कोर्स लिया होगा। हमेशा बेटा पढ़ना हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नहीं पढ़ोगे इंटरेस्ट के साथ डिग्री ले लोगे, लेकिन यू नॉट बिकम एजुकेटेड लिटरली कैरियर। मैं आपको बताऊं, हम लोग अभी, आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा आप लोग बाहर जाएं, यूरोप देखें। यूरोप के अंदर जितनी कंपनीज में मैंने काम किया है, और मुझे बड़ी हैरत हुई है देख के कि जितनी की पोस्ट है सब पर एशियंस हैं, पाकिस्तानी और इंडियन। मैंने एक्चुअली में मैम साहब भी डिस्कस कर रहा है, जिस ट्रेनिंग लिए इज ऑल्सो पाकिस्तानी, बिलोंग टू लाहौर। हम बहुत आगे हैं, लेकिन मसला है सही, वो हमारा जो फेयर है ना, और वो आपको अभी खत्म करना है। अगर आप अभी नहीं खत्म करोगे, आप ग्रुप, हमारे साथ भी था, ग्रुप प्रेजेंटेशन मिलती हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन में यही पूरी प्रेजेंटेशन बनने के बाद 5 दिन यही लड़ाई होती, शुरू किसने करना है, और कोई वाइंड अप में नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है सवाल जवाब उससे होने होता था। मैंने वाइंड अप नहीं, मुझे बीच में रखो, 2-3 स्लाइड में बोल दूंगा, बस मेरा काम पूरा हो गया। वी डू लाइक दैट, नो कॉन्फिडेंटली बोलो मैं करूंगा, मुझे करना है। बिकॉज जब आप एक लीडर बन के किसी कंपनी को लीड करोगे आगे जाके, यू हैव टू टॉक विद देम, यू हैव टू सेटल एवरी इशू। अब आप डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, अब डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन सॉल्व करेगा? आपने करना है। अगर आप पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप किसी से बात कर सको, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? सो दैट इज द राइट टाइम टू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स। शुड कम्युनिकेट। जब आप, वो एक और बात याद रखिएगा, जब आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। और हम इतने कंफ्यूज लोग हैं, और ये हकीकत है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल पकाना क्या है। सारी बातें छोड़ दें, हम अपने 7 दिन का किचन मैनेज नहीं कर सकते। पूछना क्या पकाना है, मुझे पापा से पूछ लो, नहीं भाई से पूछ लो, मम्मा से पूछ लो, एंड में पकता वही है जिस बेचारे ने पकाना है, उसके पास जो पड़ा था वो पका देता है। हम अपना मेन्यू डिसाइड कर सकते, इतने कंफ्यूज लोग हैं। तो शुड बी क्लियर, शुड इम्प्रूव योर स्किल्स एंड पॉलिश देम, वर्क ऑन दैट। और मैं आपको एक बात हकीकत बता रहा हूँ आज, ये मैं आपसे नहीं कह रहा कि लाइफ एंजॉय मत करो, सोशल मीडिया एंजॉय मत करो। सोशल मीडिया को जितना लिमिटेड करोगे ना, उतना अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा। हम करते क्या है, सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहला काम हमारा पता क्या होता है, हमने मोबाइल उठाना, आज किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, उसके बाद कोई और काम करना, और रात को सोने से पहले भी, और रात को सोते हुए भी, जब हमारी आंख खुलती है, हम उठा के मोबाइल देखना किसी के मोबाइल बंद करके सोया करो सुकून से। अपनी नींद पूरी करो, अपने आप पर तवज्जो दो। देखो आज जो इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पर करोगे, कल वो इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगी।
ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए मेहनत करो और अपने आप को टाइम दो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे। क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ जैसी दिखती है उससे वैसे अडॉप्ट नहीं करना। यू हैव टू रिसर्च अबाउट क्रिटिकली। सोचो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों होगा, ऐसा होगा तो क्यों होगा। इससे बेसिकली आपकी इनोवेशन की स्किल्स इंप्रूव होती है। आपको एक सिस्टम में बिठा दिया गया, ऐसा नहीं ऐसे कर लो, आपने भी बस सिस्टम को समझा और ऐसा शुरू कर दिया। नो, क्रिटिकली उसको सोचो, ये सिस्टम कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको कैसे बेहतर बना। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूं, रमजान का महीना था, यूनिवर्सिटी में हमारे डायरेक्टर है हमारे पास, तो हमसे आगे कहा कि यू हैव एनी इश्यूज। तो मैंने कहा सर आई हैव एन इशू बट आई टॉक प्राइवेटली, कैन यू कम टू माय कैबिनेट में। चला गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मसला है। वैसे यहाँ नमाज पढ़ने की जगह नहीं, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे, वी हैव 10 to 12 मुस्लिम स्टूडेंट्स है। उसने कहा ओके ठीक जाएँ आप। तो नेक्स्ट डे उन्होंने एक रूम खाली कराया, साफ सुथरा कराया, उसमें AC लगवाया, हीटर लगवाया, साफ सुथरा करके हमें प्लेइंग रूम बना के दिया उन्होंने। यहाँ भी आराम से नमाज पढ़ सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो जब वो हमने प्रे का पूरा सिस्टम स्टार्ट किया तो उसके बाद सारी कम्युनिटी पहुंच गई वहाँ, सर हमें भी प्ले रूम चाहिए। तो दे आर स्केयर्ड टू टॉक। Why you are scared? If you are think that you are doing a good job, go and discuss with your manager. So that if we do like that, we can improve the things, and that is very important. कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है जो अच्छे प्रॉपर मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं। जब आप कोई न्यू चीज़, कोई न्यू आइडिया, न्यू इम्प्रूवमेंट प्लान लेके जाते हो अपने सीनियर्स के पास, दे अप्रिशिएट यू। इसलिए उन्होंने रखा, उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट आपको मैनेजर बना के आपके हवाले कर दिया है कि हाउ यू रन इट, नाउ इट्स अप टू यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, ऑन योर जॉब, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन योर इंस्टीट्यूट एज वेल। देखो या इट्स लाइक योर फैमिली एंड योर जॉब इज लाइक योर फैमिली। When you enjoy your job, देखो काम तो 8 घंटे करना ही है, अब उसको रो के करना है, एंजॉय करके करना है, सब कुछ। तो आप जितना उसे एंजॉय करोगे, जितना उसको फील करोगे कि नहीं my passion to do that, you learn a lot. Okay, growth mindset में बाद में आएंगे, इससे पहले एक्टिविटी है हमारी। इस एक्टिविटी को करने के बाद हम growth mindset पर वापस जाएंगे। You have a variety of chocolate bars and you each have 10 minutes to add or element parts from the bars to create a new product. This is an individual exercise. आपको करना क्या है, इसमें एक चॉकलेट बार आपको दिख रही है, इसके ऊपर बहुत से एलिमेंट पुट्स हैं इस वक्त ना, इसमें से आपको आपकी मर्जी, आप इसे रिमूव करें या इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आपने न्यू चॉकलेट डिजाइन करनी है। And after that I call you in front and you describe your product. Let's start. आप इसमें से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको न्यू प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब करना है आपने क्या बनाया है। Okay, if you want to do in groups, I have no issues. इस एक्टिविटी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस कर ली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर डेवलपमेंट के लिए। उसको डिस्कस करने से पहले मैंने एक्टिविटी इसलिए रखी कि उसको मैं इससे लिंक कर सकूं। तो वी सीरियस टू टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटी, इज नॉट अ फन, इट इज सीरियस लर्निंग बिहाइंड इट।
अगर किसी ने टाइम से पहले कर ली तो स्टेज पे आ सकता है। आ जाए कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आप पर। Just clap for them. Anyone else? और कोई आना चाहे आ जाओ। गुड, शाबाश। किसी और को आना है? कम। गुड। Just clap for थैंक यू। मुझे पता है कितना मुश्किल था ये टास्क। ये टास्क कितना मुश्किल था, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इट्स टू डिफिकल्ट। से लाउडली, इट्स टू डिफिकल्ट और टू इजी? ये टास्क किसने का डिफिकल्ट है? दैट्स गुड, इट्स ट्रू। ओके, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले, एक होते हैं ग्रो माइंडसेट वाले। ये एक्टिविटी मैंने करवाई भी क्यों है आपसे? देखो, हाउ यू गेट इनोवेशन, सिंपल टास्क था ये। कई लोगों ने तो इसे अटेम्प्ट करने का सोचा भी नहीं, और ये हकीकत है। कहीं ने सोचा होगा एक आधा उठ के चला जाएगा, बस बहुत है, हम क्यों। मैं देख रहा था कई लोग अपने मोबाइल में बिजी थे, कोई आपस में बातें कर रहे थे। सी, these are the people, they are think where they are comfortable. They are called fixed minded set persons and they never get grow in the market. ये मेरी आज बात रिटर्न में लिख के देने को तैयार हूँ आपको। क्यों? ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, बहुत हैंडसम सैलरी कमाता है, उसकी डेजिग्नेशन लो है, वो कहता है मुझे डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, मुझे पैसे मिले, मेरी लाइफ सेटल है, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये पीपल होते हैं फिक्स माइंडसेट पीपल, इनको ग्रो नहीं करना होता। ग्रो माइंडसेट का जो बच्चा होता है या प्रोफेशनल है, ही वांट टू लर्न डे बाय डे टू इम्प्रूव। एक बात याद रखना, सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस नॉलेज है। जितनी नॉलेज आपकी इम्प्रूव होगी उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर से मिला कराची में, हमारी हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस वक्त, तो हमारी ईयरली एक्सपो होती थी, तो उसमें पूरे कराची से मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए जाते थे जो बात करते थे। तो एक बच्चा था वहाँ, उसकी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, और उस स्टोरी ने मुझे इंटरनली बदला। आप मुझसे बहुत बेहतर है, मैं पढ़ने में आपसे भी बहुत ज़्यादा खराब था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उस बच्चे ने मुझे इंटरनली ऐसा बदला कि मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया उसने।
वो बहुत लो फैमिली का बच्चा था, उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब उसे क्रेज था ऑटोमोबाइल का काम सीखने का, तो उसने एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया कि मुझे ऑटोमोबाइल का कोर्स करना है। तो इंस्टीट्यूट वालों ने उसे ये कहकर एडमिशन, और ये भी कुछ ट्रू स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, ये कहकर एडमिशन नहीं दिया कि एक तो आप फिजिकली मदद के साथ इस लाइन नहीं होंगे, हम आपको एडमिशन दे पाए, दूसरा आपका एक्सेंट भी ऐसा है कि मुझे हमें नहीं लगता आप आपको पढ़ पाओगे। तो बच्चा वापस आ गया। उसके घर के पास एक मैकेनिक था, उसने उसके पास काम सीखना शुरू किया ऑटोमोबाइल का। काम सीखता था, दिन में रात में वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेता था। उसने इंटरमीडिएट क्लियर किया, इंग्लिश का एडवांस लेवल क्लियर किया। उसके बाद उसने ब्रिटिश काउंसिल से 2 डिप्लोमास किए इंग्लिश के। उसके बाद उसने सुजुकी कंपनी को लेटर लिखा और अपने पूरी स्टोरी लिखी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैंने 2 साल यहाँ काम किया, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ सुजुकी के पास। तो सुजुकी वालों ने उसे अपने पास इंटर्नशिप दी। उसने 6 महीने की इंटर्नशिप की सुजुकी कंपनी में। उसके बाद जिस कोर्स में उसे एडमिशन नहीं मिला था, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, मैं नाम लूंगा आपको पता चल जाएगा, कराची का टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट है वो। जिस कोर्स में उसे एडमिशन नहीं मिला, आज वो उस कोर्स का इंस्ट्रक्टर है। और मैंने जब उससे जुमला पूछा, और आप यकीन करें, आई एम शॉक्ड एट दैट टाइम, और जब मैंने उससे जुमला पूछा कि जब तुम्हें उन्होंने ये बोलकर यहाँ से निकाला, तुम्हें कैसा फील हुआ, तो उसने मुझसे कहा, सर मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मौका था वो, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ऐसा ना करते तो मैं आगे ये सब करता ही ना। कह रहे मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे इंटरनली दुख हुआ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कह रहा हूँ मुझे मोटिवेट किया कि मैं वापस आया। देखो, ग्रोथ माइंडसेट का जो पर्सन होता है उसका यही काम, यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस। किसको नहीं पसंद कि उसके अपर सीट से अपर सीट मिलती जाए, बट उसके लिए आपको चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, उन्हें लर्न करना पड़ेगा, उससे डर के भागना नहीं पड़ता। टीचर आके कहता है ये काम ऐसा नहीं ऐसा हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई असाइनमेंट बड़े दिल से बनाया हो और आपके टीचर ने कहा समझ से बाहर नया बनाओ? आप यकीन करें मेरे साथ रोज हुआ है, और जिन्होंने किया सामने बैठी हैं, पूछ लो। लेकिन मैं आपको भी अभी पिछली बात शेयर कर रहा था, हम सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी जाते थे और रात को 10 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते थे, और यकीन करें काम और सिर्फ काम। हमारे 2 सुपरवाइजर थे, एक ये टेक्सटाइल देखती थी और हमारे दूसरे सुपरवाइजर थे वो हमारा फैशन देखते थे। उनके पास काम लेके जाओ, ओके समझ नहीं आ रहा उनके पास चले जाओ, इनके पास आओ समझ नहीं आ रहा उनके पास चले जाओ। हम पूरा दिन नीचे से ऊपर, यहाँ से वहाँ, ये काम था हमारा। और एंड अच्छा, और आपको बताऊं, फैशन के स्टूडेंट बैठे होंगे, हम फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे थे, फाइनल थीसिस सर पे ड्राफ्टिंग कर रहे, जमा कराना है काम। सर को सर ड्राफ्टिंग देखने, कह रहे यार बहुत जबरदस्त है, सीजर लाओ, सीजर का है, सीजर दी सेंटर में से 2 कट के उठा के पेटी नहीं बना के लाना, फिर बात करेंगे। कल सबमिशन है रात 10 बजे का टाइम है, मुझे नहीं पता, सबमिशन सुबह ही चाहिए, नहीं तो फेल कर दूंगा। बट हमने वो टफ टाइम गुजारा। उसके बाद मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में पढ़ाने गया। वही जो मेरे सुपरवाइजर थे, ये बात असिस्टेंट डायरेक्टर फैशन डिपार्टमेंट है। बच्चों ने मुझे डरा दिया कि कोई नए टीचर आए और ये इतना तंग करते हैं, क्लास में आके बैठ जाते हैं और जो है ना टीचर से सवाल करते हैं और टीचर बड़े से तंग है। मैंने कहा जब आएंगे तो देखेंगे। मुझे नहीं पता था वही मेरे सुपरवाइजर है। उन्होंने गेट खोला, मैं पढ़ा रहा था, मुझे देख के वापस चले गए। क्लास खत्म हुई, प्यून आया उनके साथ, आपको बुलाने में, क्या कमरे में बैठा उनके साथ, और हमारे डायरेक्टर बैठे हुए थे। तो हमारे डायरेक्टर ने ऐसी मजाक में कहा सर आपने सबको तंग किया, इसको आपने तंग नहीं किया, क्यों? तो उन्होंने मैं आंसर किया, मुझे आज भी याद है। और मुझसे कहा सर ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैंने बनाया, मुझे पता है इससे क्या होता है। सी यहाँ आपको लगता है कि आपके टीचर आप पे सख्ती कर रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं आपके साथ कर क्या रहे हैं। बेसिकली दे आर पॉलिशिंग यू, क्या है या आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बेसिकली जब हम कैनवस के उस तरफ थे जहाँ आज आप बैठे हो, तो हमें भी लगता था बड़े जालिम हैं। हमने अपने टीचर का नाम डाला होता हिटलर, और दूर से आने वाला हिटलर आगे पीछे हो सारे। मतलब इतनी सख्ती थी कि अगर आपका मैनिक्विन आपकी अलॉट की भी जगह पर नहीं है तो आपके असाइनमेंट में से -5, और फिर प्रिंसिपल बोले या डायरेक्टर बोले -5 मतलब -5 है।
आप उसको टर्न आउट नहीं कर सकते। बट डिसिप्लिन सिखाया मैंने हमें, और ऐसा डिसिप्लिन सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमें कोई भी आने वाला चैलेंज फील ही नहीं होता, हम जस्ट ओके रूटीन लाइफ। तो इट्स गुड, दे आर पॉलिशिंग यू। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हर चीज़ में बच्चे को फ्रीडम दे दिया जाए, इट्स ओके, जाने दो जाने दो जाने दो, तो वो जो एंड प्रोडक्ट निकलता है ना, वो ऐसे ही होता है। और हम असाइनमेंट बनाते भी कैसे हैं, ट्रूली स्पीकिंग, हमने गूगल खोला और ये चीज़ मत करना, ये सबसे कह रहा हूँ मैं, इफ़ यू वांट टू बिकम क्रिएटिव नेवर डन दिस थिंग। हम गूगल खोलते हैं, एक चीज़ हमने यहाँ से उठाई, दूसरी चीज़ हमने यहाँ से उठाई, तीसरी चीज़ हमने यहाँ से उठाई, मिक्स एंड मैच किया, चार्ट बनाया, नई चीज़ डेवलप करके लाए, लेकिन हमने असाइनमेंट बना ली। इट्स कॉपी एंड पेस्ट। इसकी वजह से अपनी क्रिएटिविटी लूज कर रहे हो आप। जस्ट थिंक बियॉन्ड दैट। सोचो, एक चीज़ के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। इसको मैं डिफरेंट तरीके से बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, मुझे बनाना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इम्प्रूव योर माइंड सेट। यही माइंड सेट इंडस्ट्री में जाके आपके काम आएगा जब आपको कोई नया चैलेंज दिया जाएगा, तो भाई ये न्यू कोर्स है, आपने पढ़ाना है, इससे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। आपसे भी फेयर है कि मैं नहीं पढ़ा सकता या मैं नहीं पढ़ा सकती, सॉरी मैंने नहीं करना। नो, यू हैव टू लर्न एंड सेट योर माइंड। तो इस पे आपने खास तवज्जो देनी है। ओके, ब्लू ओशन, रेड ओशन स्टडी, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिगिन एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो, इसको सिंपल समझा देता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। समंदर बिल्कुल वाइट है, स्काई ब्लू है, उसमें सिंपल एक शार्क है, वो फीडिंग कर रही है, नो इशू, क्लीन है। मीन्स you are the single person in the market to develop something. There is no competition, so you have the monopoly and you are enjoying your life. But उसमें दूसरी शाख आई, तीसरी शाख आई, चौथी शाख आई, लड़ाई हुई शुरू हुई, आपका ब्लू वाटर रेड हो गया। इट्स मीन्स द रेड वाटर मीन्स कंपटीटर्स में लड़ाई शुरू हो गई, और अब आपको यहाँ पर कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लेके आना होगा जो दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा। जब तक वो नहीं लेके आओगे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू वांट टू डेवलप समथिंग, सी इन विच मार्केट यू वांट टू लॉन्च। यू वांट टू गो टू द ब्लू साइड एंड यू वांट टू गो टू द रेड साइड। इफ आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो रेड साइड पे जाएगा, तो बी रेडी यू फेस द म्यूजिक इन द इंडस्ट्री, बट चूज द ब्लू साइड इज मच बेटर फॉर यू बिगिन स्टार्टिंग। इसको करने से पहले हम क्लास एक्टिविटी करेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस दिस टॉपिक इन माय सेशन। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मेक अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल एंड डिस्कस ईच अदर। इफ यू डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ what you were not aware of previously, explain what your peers think of you and when you discuss with you change. आपके दोस्त हैं, आप दोस्त हो सारे, लाइट गई, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने डिस्कस करना है आपस में पूरी बात। उस पर बाद में आते पहले सेशन कंप्लीट कर लें। ओके, आपने करना कि बेटा 2 बच्चों का ग्रुप बनाना है एंड डिस्कस अबाउट योरसेल्फ। और देखो कि आपको अपने बारे में कुछ नया पता चलता है। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त से पूछो कि तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, मैं कैसी हूँ। वो आपको बताएगी, सच बताएगी आप कैसी हो। तो आपको सुनने के बाद देखना है कि आपके अंदर वो था कि नहीं, क्या ऐसी न्यू चीज़ आपको पता चली जो आपको पहले नहीं पता थी अपने बारे में। वी हैव टू फाइनल दिस एक्टिविटी क्विकली। तो 5 मिनट में दे रहा हूँ आपको, दैट्स इनफ। जस्ट डिस्कस अबाउट योरसेल्फ और अपने फ्रेंड से पूछो कि मेरे बारे में बताए मुझे, तो आपको क्या बता रही है, मुझे बताना है ऐसा क्या नया आपको पता चला जो आपको अपने बारे में इससे पहले पता नहीं था। नहीं आप फिक्र नहीं करें बेटा, मैं इस बार खुद पीछे आके पूछूंगा। मुझे पता है आप लोगों ने आगे आना नहीं, तो मैं खुद पीछे आके पूछ लूंगा, कोई मसला नहीं है।
Anyone wants to come? इस बार मैं खुद बुला दूंगा, आप लोग डिस्कस करें, कोई इशू नहीं। आ जाओ। हाँ आप लोग आ जाओ, डिस्कस कर रहे थे ना, आ जाओ यहाँ जरूर पर आ जाओ, शाबाश। आप डिस्कस करते हैं ना यहाँ जाओ, दोनों आओ, जिसके साथ डिस्कस किया उसको भी लेंगे और साथ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। Anyone else want to come? हम लोग यहाँ लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आ जाओ जल्दी सर, अभी वाइड अप सेशन। क्या डिस्कस किया आप लोग? शाबाश। ओके, अभी इन बच्चों से मैंने बुला के डिस्कस किया तो एक बच्चे ने कहा कि सर कि मेरी दोस्त को गुस्सा बहुत आता है लेकिन इसे देख के लगता नहीं। वो कहती है कि मुझे आता है, पर मुझे नहीं बिलीव किसको आता होगा, इसको देख के लगता है कि मुझे गुस्सा आता है। देखो बात अगर ऐसा होता है, सक्सेस के लिए ये जो मैं लास्ट पॉइंट आपको पढ़ाना जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बात अगर मेंटली आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आती आगे क्या करना है, यू आर पजल्ड, एट दैट टाइम you have to adopt this policy, Kurt Lewin's change management model। ये क्या कहता है, जब आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आपका बॉस आपको बुला के कहता है आपके अंदर ये चीज़ है और ये मुझे नहीं पसंद, ये कंपनी का इमेज खराब कर रही है। इवन आपके टीचर कहते हैं कि आप असाइनमेंट बनाते हो लेकिन ये चीज़ मिसिंग है, हमें नहीं पसंद, इसको इस तरह से बना के लाओ। तो हम बड़े हैरान होते हैं कि हमारे अंदर तो ये है ही नहीं, हमें तो कभी फील ही नहीं, पर ऐसा होता है। बाद अगर ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फील नहीं होती पर सामने वाला से फील कर रहा होता है, तो आपके लिए कोई चेंज बहुत शॉकिंग होता है। यू कांट अडॉप्ट दिस चेंज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट नो यू हैव टू डू दिस। वो कहते हैं ना, पहले अपने आप को अनफ्रीज करो, बी रिलैक्स्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाई अदर्स थिंक दैट अबाउट यू। व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू नो प्रॉब्लम, वेयर हैव यू प्रॉब्लम, देन चेंज योरसेल्फ। पहले आपने इसमें अनफ्रीज करना है अपने आप को, जो क्रिटिक्स आपको मिल रही हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने असाइनमेंट बनाया प्रिंटिंग का, बहुत अच्छा है, आपने बहुत मेहनत की उसके,
आप अपने टीचर्स के पास लेके गए, आप टीचर्स ने कहा तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन काम करते हो, मोटिव बहुत अच्छे बनाते हो, पर आप में प्रॉब्लम है कि आपकी कलर कलेक्शन अच्छी नहीं है, ये कलर इसके साथ मैच नहीं करता। लेकिन फ्रॉम योर माइंड सेट इट्स अ परफेक्ट थिंग। एक बार आपको कमेंट मिलेगा, 2 बार आपको कमेंट मिलेगा, तीसरी बार आपको कमेंट मिलेगा, देन यू फील योरसेल्फ, देन रियलाइज व्हाई द पर्सन इज फीलिंग दिस अबाउट मी, अडॉप्ट हैप्पीली। हमें जब कोई क्रिटिक्स करता है ना तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो इसकी ऐसी कैसे मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नो, अडॉप्ट इट। देखो क्रिटिसिज्म जो आज का दौर है वो आपको जब तक फेस करना है जब तक आपकी सांस चल रही है। इवन तो आप लोग कवर पे क्रिटिसाइज करते हैं, कफन सही नहीं था, मैला था, ये सीधी नहीं बनी है, टेढ़ी बनी है। सक्सेस के लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, फील पॉजिटिवली। उसके बाद जस्ट मेल्ट योरसेल्फ एंड सी व्हाई पीपल आर क्रिटिसिंग अबाउट माय सेल्फ। Adopt this change in your personality and then refreeze yourself. Then focus on this change. ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 मिनट के लिए उस चेंज के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए उस चेंज को अडॉप्ट तो कर लिया, उसके बाद बोला ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो गया, अगले प्रोजेक्ट में वापस आप पुरानी रूटीन में चले गए। ऐसा नहीं करना आपने। Just meet yourself, unfreeze yourself, adopt this change and then freeze yourself and follow further things. ये बहुत जरूरी है और इसका आसान हल बताता हूँ आपको। मैंने आपसे एक्सरसाइज अभी क्यों करवाई। आप फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, ऑलवेज टॉक अबाउट योरसेल्फ। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और उसको बुरा नहीं मानना है। वो आपको अगर कह रहा है कि आप फील करो कि मेरे कितने दोस्त मुझे ये बात कहते हैं कि आपकी आदत बहुत बुरी है, यू हैव टू चेंज इट। इस डेवलप योर पर्सनैलिटी। और जो आपको कोई गलत चीज़ बता रहा है आपके बारे में, और अब मैं कहता हूँ उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं। यू हैव टू और शी हैव टू मेक यू परफेक्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिन्हें अडॉप्ट करके आप फ्यूचर में अपने लिए सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं या कोई भी इंसान या आपके टीचर, मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, वी आर जस्ट ह्यूमंस नॉट मैजिशियंस। वी गिव यू गुड गाइडेंस। काम आपने जाके करना है और मेहनत करें इंशाल्लाह ताला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बात को मैं वाइंड अप करूँगा अपना सेशन। जिंदगी में एक चीज सीख लो, यही चीज जिंदगी की कामयाबी है। लोग पूछते हैं सक्सेस का शॉर्टकट क्या है। ज़हन में आज एक बात बिठा लेना, सक्सेस का शॉर्टकट कोई भी नहीं। जो आपसे कहता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सक्सेस बेटा मेहनत से मिलती है। मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी ना, आई वाज जस्ट 14। मैंने इंटर किया था, उसके बाद मुझे नहीं याद, उसके बाद नहीं सॉरी मैंने मैट्रिक किया था उस वक्त, और मुझे नहीं याद उसके बाद मैंने घर से कभी रुपया भी लिया। आई डन माई PhD, माई हार्ड वर्क। हाँ, एक चीज़ मेरे साथ अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी थी, मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले। जहाँ मुझे गाइड करने की जरूरत है मुझे किया और राइट गाइड किया। और आज भी हमारे जो टीचर है, जो हमारे सुपरवाइजर थे, आई थिंक ही सून बिकम द फर्स्ट PhD इन फैशन इन पाकिस्तान। ही इज कंप्लीटिंग आई थिंक इन 2-3 मंथ कंप्लीट PhD। आप यकीन करें इतने सब थे वो, उसके बावजूद मुझे आज भी कुछ पूछना होता है तो मैं ईमेल करता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने थीसिस के बाद, बिकॉज मैंने अभी अपना मास्टर्स का थीसिस भी फैशन पे किया है और अपना जो PhD की जो रिसर्च है वो भी सारी फैशन पे कर रहा हूँ मैं। तो मैं उन्हें एक चीज़ भेजता हूँ कि सर मुझे गाइड कर दें, ये सही है। वो हंसते हैं, क्या सही हो तुम? मैंने कहा नहीं सर प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। तो टीचर्स आपके हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। इनके साथ सीखें इनसे, ठीक है। सबसे बड़ा, मैं बाहर पढ़ के आऊँ ना, अभी मुझे सिर्फ एक फ़र्क नज़र आया बाहर और यहाँ में। कई जगहों पे हमारी पढ़ाई उनसे बहुत बेहतर है। वहाँ सिर्फ एक प्लस पॉइंट है जो जिससे मुझे बहुत मतलब कंफर्टेबल फील कराया। वहाँ टीचर स्टूडेंट में गैप नहीं है। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग विद योर टीचर। यू हैव टू सिट विद हिम एंड टॉक एवरीथिंग यू वांट टू टॉक। ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। बहुत मतलब आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब यकीन करो मास्टर्स के अंदर मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे इंडियंस, इवन दे डोंट राइट देयर नेम्स। कैन यू बिलीव दैट? हम कहते हैं कि पाकिस्तानी यार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी। मतलब मैं जॉब करने गया, वो खुद कहते हैं ट्रेनर्स हमारे, फ्रॉम पाकिस्तान,
कम असाइड। अब हमें लगा यार हमें साइड में क्यों कर रहा है, हम पाकिस्तानी नहीं है। उसने कहा यू आर द ग्रुप लीडर बिकॉज आई नो यू आर इंटेलिजेंट फ्रॉम यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। वो पाकिस्तानी की ऐसी वैल्यू है आज भी बात, बट यू हैव टू अडॉप्ट फ्यू चेंजेस एंड पिक न्यू थिंग्स। और एक लास्ट एडवाइस आपको दूंगा, अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है इन ट्रू सेंस तो बेटा रीडिंग किया करो। यू हैव टू रीड। कम से कम घर जाकर 1 घंटा कम से कम आपको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर। हम असाइनमेंट कब बनाते हैं, मंडे को असाइनमेंट सबमिट करना होता, संडे की रात को याद आता है, सबने तो असाइनमेंट भी दिया होता है। जैसे कि कॉपी बोलते हैं क्या करा, वो जैसा वैसा बनता है बना के सबमिट कराते हैं। नो, आप घर जाके अपनी बुक्स खोलो, पढ़ो, 1 घंटा पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स ओके एंड थैंक यू वेरी मच। जब पता है पीछे वाले बहुत बोर हुए हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके, हमारे साथ भी था, ठीक है। आई एम अ बिट टायर्ड बिकॉज मैं पिछले 15 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, पूरा यूरोप ट्रैवल किया मैंने। मैं सैटरडे की रात को पाकिस्तान आया हूँ, संडे को लाहौर आया हूँ, तो आई एम वेरी टायर्ड दैट टाइम। और मैंने यहाँ से वापस जाना है मुल्तान थोड़ी देर बाद। कल मेरा मुल्तान में सेशन है, सेशन कंप्लीट करके फिर मैंने फ़्लाइट लेनी है, फिर मैंने जाना है कराची, मेरा वहाँ सेशन है। तो आई एम अ बिट टायर्ड बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और मेरी दुआएं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी मैनेजमेंट से भी मिल के। और वर्क हार्ड बेटा मार्केट में, अगर आपको कोई ये कहता है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो मार्केट में बहुत जॉब्स हैं, भरी पड़ी है मार्केट जॉब्स है, बट आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को आप कैश कर सको। बी सिंसियर विद योर सेल्फ एंड बी सिंसियर विद योर स्टडीज। और मैं आपको लास्ट टिप दे दूँ, सबसे बड़ी कामयाबी का जो राज है ना, वो है बेटा ईमानदारी। और सबसे पहली ईमानदारी आपको अपनी ज़ात के साथ करनी है। हमें पता है रात को देर से सोने से तबीयत खराब होती है ना, सेहत पर बुरा असर होता है, फिर भी रात को 4 बजे तक हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर गोल। जब सक्सेस, मुझे जिन चीज़ों की चाहत थी ज़िंदगी में, आप यकीन करें मैं हल्फिया बात कह रहा हूँ, मुझे आज उनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। मैं ज़िंदगी के इस जगह पर आके अब खड़ा हूँ, मुझे वो सब मजाक लगता है पीछे, और मुझे अपने आप पे हंसी आती है। तो जब यंग था, आप लोगों की एज में था, मेरी अच्छी खासी एज लगती नहीं, वो गलत मसला है। मेरी शादी हुई तो आज जितने मेरे बच्चे होते हैं, इट्स ट्रू। बट अब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से। और ज़िंदगी आपको हर नए दिन नई चीज़ सिखाएगी। बी रेडी फॉर इट। और बहुत इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। बी पॉजिटिव, पाकिस्तान में बहुत कुछ आपके लिए। बी फोकस ऑन योर सेल्फ। और एक लास्ट थिंग, थिंक क्रिटिकली अबाउट एवरीथिंग। डोंट गो टूवर्ड्स बेसिक थिंग्स। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बियॉन्ड द लिमिट सोचो कि मैं नया कुछ करूँगी तो क्या होगा। फाउंड समथिंग न्यू फ्रॉम द मार्केट। डोंट यूज ओल्ड आइडियाज। कभी भी असाइनमेंट बनाते वक्त गूगल का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो आपके माइंड को वहीं फिक्स कर देगा। 4 पिक्चर्स आपके सामने आती हैं और आपको उसके बाद लगता है कि जो चीज़ मैं पढ़ना चाह रहा हूँ ये बस यही। नो, जस्ट रीड द डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड थिंक फ्रॉम योर माइंड कि आपके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ कैसी है, देन गो फॉर इट। आप 1-2 असाइनमेंट में एक्सरसाइज रिपीट करके देख लो, आपको अपने काम में ज़मीन आसमान का फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। वो लगेगा आप कुछ कर रहे हो। दैट्स इट। किसी को कोई सवाल पूछना है, वो है यू हैव 5 minutes, देन आई वाइंड अप एवरीथिंग। कोई कुछ भी पूछना चाहता है, वो है या श्योर। आप अगर चूज करना चाहते हैं एक चीज में बेस्ट हो, आप वो करोगे जो पसंद है वो करो। सब्जेक्ट है आपका तो या फील्ड क्या है, ठीक है, इसमें आप बेस्ट हो वो इसको चूज करो या जो आपको पसंद है। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेटा इस पर, आपको पसंद ही वो होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, स्कल्पचर में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपको क्या पसंद है? ड्राइंग में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, तो लाइक मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आके स्केचिंग की है, बट क्लास में सेकंड थर्ड टॉप, तो दोनों में अच्छी जा रही है, लेकिन ड्राइंग में थोड़ी कम। स्कल्पचर भी फर्स्ट टाइम है। इसमें 2 चीज़ें बेटा। एक चीज़ है जो आपकी बोर्न स्किल है, उसमें आप बहुत अच्छे हो। एक चीज़ है वो आपका इंटरेस्ट है।
दोनों में आपका फ्यूचर है। इफ यू हैव अ गुड स्किल्स, समटाइम्स योर इंटरेस्ट डेवलप इन दिस थिंग। दोनों को पैरेलल लेके चलो। और अगर आप स्कल्पचर बनाओगे तो उससे पहले भी आपको ड्राइंग करना पड़ेगी। यू हैव टू ड्रॉ समथिंग इन योर माइंड। आपको पता है क्रिएटिविटी पैदा करने का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे दिमाग में 50,000 आइडियाज हैं। सबसे मसला बड़ा है उसको ट्रांसफर कैसे करें पेपर पे। वो ट्रांसफर ही नहीं होते, हम उसको ट्रांसफर कर नहीं पाते। मैं भी गया था, बर्लिन घुमा मैंने, जितने स्कल्पचर्स हमने आज तक सिर्फ वीडियोस में देखे थे मैं सब देख के आया। और वहाँ आर्टिस्ट बैठे होते हैं, स्कल्पचर बने थे, उनके पूरा ओल्ड एंशिएंट स्कल्पचर उन्होंने अंदर रखे हुए हैं और वो आर्टिस्ट को इन्वाइट करते हैं। वो आर्टिस्ट बैठते हैं, बैठ के स्कल्पचर ड्रॉ करते रहते हैं। उसके बाद वो मटेरियल लेके आते हैं, अंदर बैठ के अपने स्कल्पचर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट कीप इट बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। कौन से सेमेस्टर में हो आप? अभी बहुत दूर है बेटा जर्नी, कोई टाइम लगेगा। 2-4 सेमेस्टर आगे जाओगे, आपकी मे बी पॉसिबल 6-7 सेमेस्टर में आपको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट ना रहे। और ये अजीब बता रहा हूँ आपको, ये इंटरेस्ट डेवलप होगा टाइम के साथ साथ। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो भी करो, जिस फील्ड में इस वक्त हो, फैशन में हो, टेक्सटाइल में हो, ग्राफिक्स में हो, ऑलवेज रीड अबाउट योर इंडस्ट्री डेली। इंडस्ट्री इस वक्त फिगर टिप्स पे चेंज होती है। इंडस्ट्री में क्या चीज़ नहीं आ रही है, उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें अपने टाइम के साथ सीखनी है। अब इसका जवाब दूंगा तो फिर या तो फैशन वालों की फेवर में होगा तो वो खुश हो जाएंगे, टेक्सटाइल वालों के अगेंस्ट तो नाराज होंगे। देखो, दोनों फील्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बट अगर मुझसे ये जुमला मैं इस बात से भी नहीं कह रहा कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन हैव अपर हैंड, उसकी एक वजह है, टेक्निकल वजह है। देखो, लोग प्रोडक्ट्स के पीछे जाते हैं। गुलाम खाड़ी स्टार्ट हुआ, वो क्या करते थे? कपड़ा बनाते थे। आहिस्ता आहिस्ता सेमी स्टिच पे ट्रांसफर हुआ, वो स्टिच गारमेंट्स भी बेचते हैं। द वैल्यू इज द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट डिजाइनर बनाता है, इसलिए उसकी वैल्यू मार्केट में रहती है बस। लेकिन यहाँ ये भी चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो कपड़ा है, उसकी जो प्रिंटिंग है, उसके जो डिज़ाइन है, वो टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाता है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में अब जो फैशन टेक्सटाइल की जॉब्स आती हैं ना, उन पर आप कभी सर्च कीजिएगा, उस पर बाकायदा लिखा होता है, नीड अ टेक्सटाइल डिजाइनर विच शुड हैव द नॉलेज ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन। नीड अ फैशन डिजाइनर शुड हैव द नॉलेज ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री मर्ज करना चाह रही है दोनों, उनके पैसे बचते हैं ना। 1 लाख रुपए का डिजाइनर टेक्सटाइल रखो, 1 लाख रुपए का डिजाइनर रखो फैशन, उससे बेहतर है 1-20, 1-25 में मिक्स डिजाइनर रख लो, उनका काम आसान हो जाता है। लेकिन दोनों फील्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी जगह। जाहिर बात है, मैं फैशन का बंदा हूँ तो मुझे फैशन पसंद है, लेकिन हमने टेक्सटाइल में बड़ी मेहनत की है, बड़ा तंग किया टेक्सटाइल वालों ने। लेकिन इट्स ट्रू, दोनों फील्ड्स की अपनी वैल्यू है। ये डिपेंड करता है आप कितना इंटरेस्ट लेके काम करते हो। आप यकीन करें, मैंने बच्ची को पढ़ाया, मनी डिप्लोमा की बच्ची थी वो, उसकी फैशन इलस्ट्रेशन ऐसी थी तो मैं आपको दिखा दूँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी भी अच्छे इदारे के ग्रेजुएट बच्चे की इलस्ट्रेशन ऐसी अच्छी होगी। आप मानोगे ही नहीं, अब बनिया की बच्ची है, बहुत टैलेंटेड थी। उसको आप कोई चीज़ दिखा दो और उसके बाद उसका मुंह घुमा दो उसी तरह, और उसको बोलो जो दिखाया ड्रॉ करो, कर देगी। ऐसी स्किल्स थी उसके अंदर, इंटरेस्ट था उसको, जुनून किया था। उसकी अम्मा को इंटरेस्ट था मेरी बेटी डॉक्टर बने, बन गई माशाल्लाह, डॉक्टर बन गई, छोड़ दी उसने। हाँ हाँ, बहुत जॉब मैंने भी ज्वाइन, फर्स्ट अगस्त से मैंने जाके ना ज्वाइन करना है अचानक। जॉब बहुत है वहाँ, वो पार्ट टाइम जॉब बहुत, ज़ारा में जॉब बहुत है वहाँ। हाँ हाँ, बहुत जॉब सुबह, लेकिन जॉब टाइमिंग होती वहाँ ना, ज़्यादातर लोग करते हैं पार्ट टाइम और मिनी जॉब्स। मिनी जॉब होती है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, और पार्ट टाइम जॉब करते हैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। जॉब यहाँ भी बहुत है सर, बहुत जॉब्स हैं। जब तक इंडस्ट्री है जॉब बहुत है। और मैं एक चीज़ का कायल हूँ, अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे औरतों को, जब तक हमारी औरतें जिंदा है ना, फैशन डिजाइनर भूखा नहीं मर सकता। आप उन्हें खाना दो ना दो, उन्हें कपड़े चाहिए बस। और कोई सवाल बेटा, किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो। जैसे आप कह रही थी टीचर्स मतलब स्ट्रिक्ट थे
देखो बताता हूँ इसका और अच्छा जवाब देता हूँ। अपसेट होने वालों में सबसे पहले तो मैं था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे फील होने लगा कि टीचर मेरे साथ नाजायज करते हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो सॉफ्ट साइड पे थी, इनको ये उस वक्त छोटी भी बहुत थी, लगती नहीं थी टीचर है, इनसे तो मजाक मस्ती भी कर लेते। इन्होंने सुपरवाइजर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो बाद में फील होना शुरू हो जाती थी क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जब ये जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज किए कंटिन्यूस का मॉडल प्रिंस का बेसिकली दैट इज की, वहाँ जाके फिर एक वक्त ऐसा है कि हमने रियलाइज करना शुरू किया, नहीं यार ये बार बार अगर कह रहे हैं तो कोई तो मसला हमारे अंदर भी है ना, इनको तो हमने कुछ नहीं करना, अपना मसला सीधा कर दो। तो फिर हमने उस माइंडसेट से सोचना शुरू किया कि हमें क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने चीज़ों को ठंडे दिमाग से फाइनलाइज करना शुरू किया। तो व्हेन वी रियलाइज यस वी हैव प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को फिर आप सॉल्व करना शुरू करो। जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा बुरा लगता है जब आप मेहनत से कोई चीज़ बनाओ ना, असल में प्रॉब्लम क्या है, यह एक प्रॉब्लम है जिसको आप शायद अभी ना समझ सकें। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ दिखती जो आपने बनाई है, आपका टीचर उसका एंड प्रोडक्ट देख रहा होता है, उसको पता होता है कि ये प्रिंट जब कपड़े पर जाएगा तो इसकी क्या लुक आएगी, ये कपड़ा जब गारमेंट में ट्रांसफर होगा तो इसको क्या लुक आएगी। उसका एक्सपीरियंस है, उसको पता होता है, आपने भाड़ मारा हुआ है, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकता कि भाई ये क्या भाड़ मार के लाओ। तो वो तरीके से आपको कहता है बड़े प्यार मोहब्बत से कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, आपके काम आएगा। ऐसा है, मुझे भी लगता था, लेकिन जब अब मैं उस कैनवस से इस कैनवस में ट्रांसफर हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे टीचर ने कि अल्लाह करे ऐसे सब टीचर सबको मिले। देखो जब तक आपको पॉलिश नहीं किया जाएगा ना, मार्केट के काबिल नहीं होगा। आप एक इंडस्ट्री में जॉब करोगे, जाहिर बात है तो बेटा आपको पैसे दे रहा है तो आपको सुनाएगा बेटा, उसका काम खराब करोगे तो। यहाँ तो आप आए हो, इतनी फीस, यही मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, इतनी फीस पे करके यहाँ आओ और उसके बाद सीखो कुछ नहीं। देखो पास होना इशू नहीं है, पास बेचारा टीचर भी हमारी जाना ना रैप डील होता है, टांगा भी बोलता है कर ही दो पास, चलो 50 नंबर देके कर दो, करी तो बच्चा हो जाएगा। मैटर पास होना नहीं है, डिग्री इज नॉट अ वैल्यूएबल, वो कागज़ का एक टुकड़ा है, वो आपके पास 50 है, नॉलेज आपके पास 0 है, उस कागज़ के टुकड़े का क्या करोगे। यू हैव टू गेट द नॉलेज एज वेल विद दिस डिग्री। डिग्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मार्केट में एंटर करने के लिए, उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसके साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए, सीख रहे हो और क्या सीख के आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स, और कभी टीचर से डरना नहीं होता। ये गलती जिंदगी में कभी मत करना। नेवर स्केयर्ड फ्रॉम दैट, गो एंड टॉक, उनसे बात करो, उनसे पूछो क्या मैं बताएं, ये पूछे मैंने कितना तंग किया है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ कैसे होगा। भाई सीखने आया हो ना, टीचर का काम है सिखाना, लेकिन टीचर भी तब सिखाएगा बेटा जब जाके पूछोगे। आप रूम में बैठे रहो और एक्सेप्ट करो टीचर मेरे पास आ गए। बड़ी उर्दू की बड़ी अच्छी कहावत है, माँ भी अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है जब रोता है, तो जाके रोगे कुछ पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं बेटा ऐसा करते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बेटा डायरी लिखा करो। टीचर ने बोला, आपने यहाँ से सुना, 2 दिन बाद यहाँ से पता ही नहीं टीचर ने क्या कहा था, तो जो वो कह रही है उसी वक्त उसके पॉइंट्स लो, नोट्स बनाओ और घर जाके उसे पढ़ो कि टीचर ने मुझे ये कहा था, ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉल्व करना है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, हम चीज़ें नोट डाउन नहीं करते। इवन लेक्चर हो रहा होता है, अब टीचर जब आपको मल्टीमीडिया में लेक्चर दे रहा है तो हम क्या कर रहे होते हैं, आधे बच्चे तो मोबाइल से खेल रहे होते हैं, आधे बच्चे टाइम देख रहे होते हैं, टाइम का खत्म होने बाहर कब निकलना है, 12 वाले फ्रेंड के साथ फन करना है। और होता क्या है, वो टीचर जो स्लाइड्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है कि ये स्लाइड है, आप घर पर भी इसे पढ़ सकते नहीं। जब वो पढ़ा रहा होता है तो नोट्स बनाओ, बहुत सारी चीज़ें लेक्चर में वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है आपको, तो उसके नोट्स बना के जब अपने पास रखोगे और जब घर जाके उसे आप रिपीट करोगे तो उसके बाद आप उससे लिख के आपको पेपर की तैयारी करने की भी जरूरत नहीं, आपको सब आता होगा। और कुछ थैंक यू। Thank you so much, Mr. Faisal Nadeem, for an excited and activity-based seminar on the right way to make strategy for students' career development and to gain confidence. I have a small token of our appreciation here for you. Please accept it with our sincere thanks.
And thank you, our wonderful students, for your interest and participation. Now, I would like to invite our respected faculty member and Head of Marketing Department, Mr. Nuwan, on stage and say a few words. Assalamu alaikum ji. To the ones who are left. A very thought-provoking session, and I would like to personally thank Mr. Faisal, first of all, because he belongs from my hometown. I'm also from Karachi. And the other thing is this, बहुत सारी ऐसी बातें फैसल साहब ने आपके साथ शेयर की हैं, जो कि आप लोग खुद भी क्लास में कई बार सीख रहे थे. मैं आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ से बता के भेज रहा हूँ कि ये वैल्यूबल सेशन जो आप लोगों ने आज यहाँ पर सुना है, make sure it become equal part of your heart and your mind at the same time. And this is only possible if you revise it. देखो, आप लोग के लिए मल्टीपल सेशंस यहाँ पे किए जाते हैं, और मुझे पता है जब इस तरह लाइन से 18 स्लाइड्स जाएं, उसके ऊपर 10 पॉइंट्स बताए हुए हों, एक्टिविटीज हों, तो आप लोग देख रहे होते हैं, यार दिस समथिंग बिलोंग्स टू मी, ये मेरे से कनेक्ट होता है, मुझे इसको डिस्कस करना है. स्टूडेंट केम टू मी, शी सेड सर दिस इज एक्चुअली व्हाट गोज ऑन विद मी एज वेल. So how can you make all of this a part of you? बेसिक साइकोलॉजी ये कहती है कि आप कोई चीज पढ़ते हैं तो अगर 24 घंटे तक में आप उसको नहीं रिवाइज करें, इट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ यू. इट जस्ट डजंट. हाउ मच यू वांटेड. ट्राई टू रिकॉल द लास्ट फेवरेट कोट दैट यू रेड 2 days ago, 1 day ago. यार नहीं याद रहता ना. अगर इतनी वैल्यूबल चीज आप सुन रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं यार ये स्लाइड अच्छी है, उसकी एक तस्वीर ले लेते हैं, दैट्स इट. वो आप लोग स्क्रीनशॉट में पड़ी, आपको पता भी नहीं कहां तक कहां चली गई है. 4-5 दिन में इतने सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं. So the best screenshot you have is your eyes, it's your heart, it's your mind, and the only way you can do that कि जो चीज आप यहाँ पे सुने, जो भी आपके साथ आपका नेक्स्ट पीयर है, उसके साथ उसको डिस्कस करें. I used to love and hate one friend of mine in the university, जिसको हमने जबरदस्ती ग्रुप में रखा हुआ था. सही पेसिमिस्टिक लड़का था. उसका नाम हमने रखा हुआ था वर्स्ट केस सिनेरियो. ये चैंपियन बैठ के हमारी हर चीज में कीड़े निकालता था, हमारे हर काम के अंदर, चाहे वी वर द फाइन क्लास ग्रुप इन द क्लास, और हमने इसकी ड्यूटी लगाई होती थी कि इसमें से तुम लोग बैठ के ना तुम कीड़े निकालो सिर्फ, और वो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम लोग को डालता था. इससे हमारी टीचर क्या प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारा अपना दोस्त हमारे साथ इतना कातिल होता था कि हम लोग खुद सीख जाते थे कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं. तो वो एक कॉन्सेप्ट जो हम सीखते थे, इट यूज्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ अस. फैसल साहब ने आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताई, यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. कार्ल ड्वेक की ये थ्योरी है, बहुत खूबसूरत है. वो बच्चे जो कि स्कूल के अंदर पहली पोजीशंस ले रहे होते हैं, दे आर मोस्टली कंग्रेचुलेटेड फॉर दैट पोजीशन. और वो बच्चा जो नहीं पहली पोजीशन ले रहा होता, ही इज नॉट कंग्रेचुलेटेड, इनफैक्ट ह्यूमिलिएटेड समटाइम्स इन द फैमिली. और यही वो एक बच्चा होता है जो कि आदी हो चुका होता है ऐसी लैंग्वेज के लिए, अपने बारे में सुनने के लिए. आप इसको किसी भी नए टास्क पे डालो, ही वोंट बी अफ्रेड. लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाला बच्चा होता है, क्योंकि इसको हर कोई अप्रिशिएट करता है इसके अकॉम्प्लिशमेंट पे, इसको आदत हो जाती है इस अप्रिसिएशन को लेने की. लिहाजा जितनी बार आप इसको कोई नया टास्क देंगे, ये डरेगा कि अगर मैंने इसको प्रेजेंट किया और ये फेल हो गया तो फिर मेरे इमेज का क्या होगा. और आजकल हमारे बच्चे इसी चीज से गुजर रहे हैं. ये रिसेंटली कार्ल ड्वेक की रिसर्च प्रेजेंट की गई थी, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट की, और इसमें बोला गया था जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं, ये ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. तो डरे कभी भी नहीं अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको फैसल साहब ने बताई, बुक्स पढ़े, दैट इज गुड. यूज्ड टू बी हार्ड फॉर मी एज वेल व्हेन आई वाज स्टार्टिंग. मुझे नहीं आदत थी, लेकिन मैंने इसका आसान तरीका क्या निकाला, फॉर फेज 1 पीडीएफ टू स्पीच डाउनलोड करें अपने पास मोबाइल के अंदर, और जो भी आपकी बुक है उसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड करें और सुने. मैजिकल थिंग विल हैपन. 20 मिनट के अंदर 9 पेजेस थक करके नहीं याद होते. फिर आप बोलते कोई बात नहीं यार, टीचर ने कहा एक बार और सहारा देते इस थ्योरी को, आप दूसरी बार सुनते हो, और फिर क्या होता है, स्टिल नथिंग हैपेंस. जब तक आप 3 बार उन थके हुए 9 पेजेस को ना सुन ले, वर्ड्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू कम आउट ऑफ योर माउथ एंड यू डोंट नो व्हाई. होता है कि नहीं होता ऐसे? दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गो थ्रू दैट वन सेशन 3 टाइम्स. तो बुक को पहले सुनने की आदत डालो, जब उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए, दैट बुक विल बिकम द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ. उसके बाद तुम लोग को पढ़ने की भी आदत होगी. तो पहली चीज, जो चीज यहाँ पे सीखते हो, 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज जरूर करो. अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करो, वर्ड्स के सिनेरियो खेलो उसके साथ.
बुक्स को सुनने की आदत डालो, फिर पढ़ने की भी आदत होती है। और साथ साथ एक चीज को याद रखो, जो भी यहाँ पे नई स्किल तुम लोग सीखते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स है, कोई भी चीज है, अपने दिमाग को एक बात समझाना हमेशा, इट टेक्स 60 days फॉर योर माइंड टू अडॉप्ट समथिंग न्यू। 60 days, अपने आप को 60 days का चैलेंज दो, और तुम यकीन करो, तुम लोग को खुद यकीन नहीं आएगा कि 60 days तो बहुत दूर की बात है। तुम लोग पहले वीक के अंदर अपने अंदर चेंजेस देखना। ये चॉकलेट वाली एक्सरसाइज कराई थी ना फैसल साहब, बहुत मजे की थी। अगर तुम लोग किसी चीज को पता होता है एंटोन बर्ग का, और एंटोन बर्ग ने एक रिसर्च करवाई थी अपनी चॉकलेट को प्रमोट करने में, और रिसर्च से पता चला था पीपल लव जेनरोसिटी, एंड दैट वाज द की एलिमेंट दैट दे यूज इन द मार्केट टू प्रमोट देमसेल्फ। फ्लरिशिंग करके इनकी सेल्स बढ़ी भी आगे। आजकल के दौर में जहां पे दूसरी चॉकलेट्स इतनी आगे बढ़ रही है, ये बहुत पुराना ब्रांड था। तो ये बुक्स, ये रिसर्च आपकी इनोवेशन में आपको हेल्प करेगी। इट विल सपोर्ट यू विद योर आइडियाज, योर कम्युनिकेशन विल मेक यू क्वींस एंड किंग्स, ट्रस्ट मी, आई नो दैट। So make sure next time when you're attending a session like this, ये 3 चीजें आप लोग के दिमाग में जरूर हो। Your practice in 24 hours revision, और उसके साथ साथ नोट्स जरूर लें, और बाकी जो इंस्ट्रक्टर आपको चीजें बोलते हैं उनको फॉलो करें। It was a truly thought provoking session, बहुत मजा आया फैसल साहब के साथ और बाकी चीजों को भी सुन के। Thank you so much for your time। बहुत बहुत शुक्रिया।